Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Governmental Guru. Today, I will discuss Fantabulous MCQ 9. Today, in this part, I will discuss General Financial Rules 2017 related to the inventory management. It is very important part of the GFR. Rule 207 to 211 I will discuss today. So 14 MCQs also I will discuss, and each and every rule 207 to 211 also I will explain briefly. 207 procedures related to inventory management. Rule 208 receipt of goods and services from private suppliers. 209 receipt of goods from internal divisions. Rule 210 custody of goods and materials. 211 list and account. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Do not forget to subscribe my channel Asit Governmental Guru. Let's compete. So today I will discuss Fantabulous MCQ 9. It is related to the inventory management, rule 207 to 211. So my friends, follow my Facebook page, same Asit Governmental Guru. My WhatsApp number is there, 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss Fantabulous MCQ 9. Question number 1, you see, it is given the primary subject of rule 207. Okay, rule position पूछा है जो GFR rule 207. GFR rule 207. Actually, it is related to the inventory management. Clear? Option B is the correct answer. It is very important one. Rule position you remember. Okay. GFR 207, rule 207. Okay. I discuss about the procedures related to the inventory management followed by all ministries and departments under Government of India. Option B is the correct answer. You see rule 207. It is related to the basic rules for inventory management. Rule position is important one here. Contains the basic rules applicable to all ministries or departments regarding inventory management. So in regarding to the inventory management, procedures, rules and regulations related to the inventory management must be followed by all ministries or departments under the Government of India. So here rule position is important one. Okay. Question number 2. According to rule 208 subsection 1, what is the first step when receiving goods from a private supplier? यहाँ पर जो रूल पोजीशन दिया है रूल 208 सबसेक्शन 1 में, जब प्राइवेट सप्लायर से गुड्स रिसीव होगा तब फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन रिसीविंग गुड्स फ्रॉम ए प्राइवेट सप्लायर? क्लियर? 4 ऑप्शंस: record in the stock register, give a receipt to the supplier, refer to the relevant contract terms and follow prescribed procedure, conduct a technical inspection. फर्स्ट स्टेप यही है, जब हम प्राइवेट सप्लायर से गुड्स को रिसीव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वन है, हम रिफर करेंगे रिलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स. क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स था और उसका क्या प्रोसीजर था, उसको हम फर्स्ट रिफर करेंगे. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके. तो रिसीविंग गुड्स फ्रॉम ए प्राइवेट सप्लायर, फर्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को देखेंगे और उसका क्या प्रोसीजर है. ओके. उसको ये फर्स्ट स्टेप है व्हेन रिसीविंग गुड्स फ्रॉम ए प्राइवेट सप्लायर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार भी क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. एट द टाइम ऑफ रिसीविंग गुड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी चेक्ड? जब हम गुड्स रिसीव करेंगे, हम फर्स्ट क्या चेक करेंगे? हमको क्या चेक करना है? व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी शुड चेक? क्वांटिटी, क्वालिटी, एनी डैमेज और डेफिशिएंसी, ऑल ऑफ द अबव. तो यहां पर जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव. हम फर्स्ट क्वांटिटी को चेक करेंगे कि हम जो रिक्विजिशन दिया था उसके उसी हिसाब से हमको क्वांटिटी मिला है कि नहीं. फिर हम क्वालिटी चेक करेंगे, स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हम अच्छा क्वालिटी अच्छा स्पेसिफिकेशन दिया था, क्या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कमोडिटी हम रिसीव कर रहे हैं कि नहीं उसको देखेंगे. क्या कमोडिटी में कोई डैमेज है, क्या कोई डेफिशिएंसी है, उसको भी चेक करेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. सो यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. क्वालिटी को चेक करेंगे, क्वांटिटी को चेक करेंगे, एनी डैमेज और डेफिशिएंसी को चेक करेंगे, तब हम गुड्स को रिसीव करेंगे.
ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी द स्टोर इंचार्ज इश्यू ए रिसिप्ट टू द सप्लायर। कब स्टोर इंचार्ज सप्लायर को रिसिप्ट इश्यू करेगा, वही क्वेश्चन पूछा है। व्हेन शुड द सप्लायर इंचार्ज इश्यू ए रिसिप्ट टू द सप्लायर, आफ्टर पेमेंट इज मेड, सेकेंड ऑप्शन इमीडिएटली अपॉन रिसीविंग एंड वेरीफाइंग द मटेरियल्स, ओनली आफ्टर टेक्निकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज रेडी, आफ्टर गुड्स आर यूज्ड। यहां पर देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब स्टोर इंचार्ज गुड्स को रिसीव करेगा और वेरीफाई कर देगा, ओके, इसका करने के बाद इमीडिएटली वो रिसिप्ट सप्लायर को इश्यू करेगा। ठीक है, तो इमीडिएटली अपन रिसीविंग एंड वेरीफाइंग द मटेरियल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो रूल 208 सबसेक्शन 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल पोजीशन को देखिए, लेस डाउन द प्रोसीजर फॉर रिसीविंग गुड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम प्राइवेट सप्लायर्स। जब हम प्राइवेट सप्लायर से गुड्स रिसीव कर रहे हैं कि मटेरियल्स को रिसीव कर रहे हैं, उसमें प्रोसीजर क्या है, यहां पर प्राइवेट सप्लायर को एम्फसाइज किया गया है। ठीक है, रूल 208 सबसेक्शन 1। रूल पोजीशन को भी याद रखिए। चेक, फर्स्ट वन चेक कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, उसका जो सबसेक्शन आई है, हम उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्म से, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर से, फर्स्ट स्टेप उसको हम रिफर करेंगे। द स्टोर इंचार्ज मस्ट फॉलो द कंडीशंस मेंशन्ड इन द परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑफिशियल प्रोसीजर फॉर रिसीविंग मटेरियल्स। तो परचेज कॉन्ट्रैक्ट को हम रिफर करेंगे, और जो ऑफिशियल प्रोसीजर है, कैसे, इट मींस व्हाट आर द ऑफिशियल प्रोसीजर्स फॉर रिसीविंग द गुड्स, उसको फॉलो करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट वन वेरीफाई क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी को चेक करेंगे कि हम जो रिक्वेशन दिया था, इंडेंट ऑफिसर जो रिक्वेशन दिया था कि इतना क्वांटिटी का पर्टिकुलर कमोडिटी चाहिए, कि इतना क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए, उतना क्वांटिटी है कि नहीं। और क्वालिटी, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट वन, हम एक स्पेसिफिकेशन दिए हैं कि इसी स्पेसिफिकेशन टाइप ऑफ गुड हमको चाहिए, क्या वो स्पेसिफिकेशन को वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड स्टेप हम क्वांटिटी क्वालिटी को वेरीफाई करेंगे। ऑन रिसिप्ट ऑल आइटम्स मस्ट बी काउंटेड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल आइटम्स मस्ट बी काउंटेड। क्वांटिटी को चेक करना है, उसको मेजर करेंगे, सपोज कोई मेजरमेंट है, वेट, उसको वेट भी देखेंगे, एंड विजुअली इंस्पेक्टेड, ओके, हम विजुअली प्रॉपरली इंस्पेक्ट करेंगे टू एंश्योर दे मैच द ऑर्डर क्वांटिटी। हम जो क्वांटिटी ऑर्डर किया था उसी के हिसाब से कि नहीं, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम रिक्वेशन दिया था उसके हिसाब से है कि नहीं, और एंड आर फ्री फ्रॉम डैमेज और डिफेक्ट्स, कोई डैमेज और डिफेक्ट्स है कि नहीं, इसको भी चेक करेंगे। इफ नीडेड टेक्निकल इंस्पेक्शन शुड ऑल्सो बी डन बाय एन ऑथराइज्ड टेक्निकल एक्सपर्ट और एजेंसी, कोई ऑथराइज्ड टेक्निकल एक्सपर्ट और एजेंसी है वो टेक्निकल इंस्पेक्शन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्वांटिटी जो दिए थे रिक्वेशन में उसके हिसाब से हम क्वांटिटी कलेक्ट किया कि नहीं, क्वालिटी चेक करेंगे, जो स्पेसिफिकेशन हम दिए थे उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कमोडिटी है कि नहीं, यदि उसका कोई मेजरमेंट है मेजरमेंट को चेक करेंगे, कोई वेट है वेट को चेक करेंगे, और डैमेज डिफेक्ट उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, और कोई ऐसा टेक्निकल इंस्पेक्शन चाहिए, कोई ऑथराइज टेक्निकल एक्सपर्ट और एजेंसी का हेल्प लेके उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई मशीनरीज है, कोई हेवी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, तो वहां पर टेक्निकल एक्सपर्ट और एजेंसी टेक्निकल इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड है एक्नॉलेज रिसिप्ट। हम रिसिप्ट कर लिए, वेरीफाई कर लिए, तो तब हम क्या करेंगे ना, इश्यू करेंगे। जो रिसिप्ट है हम सप्लायर को इश्यू करेंगे। अन ऑफिशियल रिसिप्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स शुड बी गिवन टू द सप्लायर। हम क्वांटिटी रिसीव कर लिया, गुड्स को रिसीव कर लिया, मटेरियल्स को रिसीव कर लिया, वेरीफाई कर लिया, तब हम रिसिप्ट इशू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ओके, सप्लायर को इशू करेंगे। ये थर्ड है। और फोर्थ वन स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करेगा स्टोर इंचार्ज। ऑल डिटेल्स ऑफ द रिसीव्ड मटेरियल्स मस्ट बी एंटर्ड इन द रिलेवेंट स्टॉक रजिस्टर, और प्रीफर करेंगे आईटी बेस्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, एंड द स्टोर इंचार्ज मस्ट सर्टिफाई दैट गुड्स वेर एक्चुअली रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। तो 4 स्टेप से फर्स्ट हम कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स को फॉलो करेंगे। सेकेंड वन क्वांटिटी क्वालिटी को चेक करेंगे, क्वांटिटी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस मेजरमेंट वेट, ओके, और डैमेज डेफिशिएंसी सब चेक करेंगे। और कोई हेवी मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट से कोई टेक्निकल एजेंसी और अथॉरिटी का हेल्प लेकर टेक्निकल इंस्पेक्शन करेंगे। और गुड्स रिसीव करने के बाद और वेरीफाई करने के बाद हम रिसिप्ट इशू करेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्टर रिसिप्ट इशू करेंगे सप्लायर को।
फिर हम स्टॉक रजिस्टर में उसको प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, उसमें डेट डालेंगे, ठीक है, और कौन सा एजेंसी से वो हम मटेरियल्स को रिसीव किया, ओके, और कितना क्वांटिटी का, सपोज डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स आर देयर, पर्टिकुलर कमोडिटी कितना क्वांटिटी है, उसका वेट क्या है, डिटेल्स हम स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। तो ये स्टेप्स को याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो रूल 208 सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया। जब प्राइवेट सप्लायर से हम गुड रिसीव करेंगे तब प्रोसीजर्स क्या है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। इन द केस ऑफ मटेरियल्स इशूड टू द कॉन्ट्रैक्टर, जब हम मटेरियल्स को कॉन्ट्रैक्टर को इश्यू करेंगे, कॉस्ट रिकवरेबल व्हाट मस्ट बी रिकॉर्डेड, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे। जब कोई कॉन्ट्रैक्टर को हम मटेरियल्स इश्यू करते हैं तो उसमें उसे हम चार्ज करेंगे, सपोज पर यूनिट चार्ज करेंगे। जो हमारा चार्ज रहेगा कि प्राइस रहेगा, ओके, जब प्राइस रहेगा, प्राइस रह सकता है रुपीज पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट हम कितना रुपीज चार्ज करेंगे वो रहेगा, वही है कॉस्ट रिकवरेबल, ठीक है। कि पर आवर कोई मशीन सपोज कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को कोई मशीन प्रोवाइड किया, तो हम जो प्राइस चार्ज करेंगे इट इज रुपीज पर आवर चार्ज करेंगे। और जितना घंटा हम इट मीन्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम टोटल अमाउंट रिकवर करेंगे। सपोज हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया कॉन्ट्रैक्टर को, सपोज हम चार्ज करेंगे कि पर यूनिट रुपीज सपोज 4 पर यूनिट, ऐसे हम चार्ज करेंगे, ओके। तो वो जितना यूनिट कंज्यूम करेगा उसे हम रिकवरी करेंगे, क्योंकि उसको तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा ना कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसको जो पेमेंट था उससे हम क्या करेंगे, डेबिट करके जो और जो बाकी रहेगा बैलेंस रहेगा हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो वही है, इन द केस ऑफ मटेरियल्स इश्यूड टू ए कॉन्ट्रैक्टर, कॉस्ट रिकवरेबल व्हाट मस्ट बी रिकॉर्डेड, ओनली द डेट ऑफ इश्यू, रिकवरी रेट्स एंड टोटल वैल्यू चार्जेबल, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर्स कंपनी प्रोफाइल, सप्लायर्स नेम। यहां पर ऑप्शन बी रिकवरी रेट्स एंड टोटल वैल्यू चार्जेबल, जैसे मैं बताया, सपोज हम कॉन्ट्रैक्टर को पावर प्रोवाइड करेंगे, ओके, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली कंज्यूम किया, डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया, डिपार्टमेंट बोल दिया कि सपोज आपको पर यूनिट ₹10 पेमेंट करना है, ओके, ये है रिकवरी रेट्स, ओके। सपोज वो 1000 यूनिट्स यूज किया, तो टोटल हम 10,000 रुपीज कितना रिकवर करेंगे, टोटल 10,000 रुपीज, वो टोटल वैल्यू चार्जेबल, ओके। जब हम उसको पेमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा, उसमें क्या करेगा, मेरा एग्जांपल में ₹10,000 टोटल हुआ, क्योंकि पर यूनिट जो पावर को यूज किया, पर यूनिट 10 रुपीज है, वो 1000 यूनिट्स यूज किया, सो 1000 यूनिट्स में कितना हो गया, 10,000 हो गया, है कि नहीं। तो ये रिकवरी रेट्स है, ये जो ₹10 ये रिकवरी रेट्स है, और टोटल ₹10,000 है। जब डिपार्टमेंट ने उसको पेमेंट करेगा, वो 10,000 क्या करेगा, माइनस करके बैलेंस को पेमेंट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द स्टोर इंचार्ज कैनॉट सप्लाई द फुल इंडेंट व्हाट शुड दे डू। सपोज इंडेंट ऑफिसर ने स्टोर इंचार्ज को दे दिया कि ये इसको इश्यू करना है, जो इंडेंट ऑफिसर उसका काम है, वो क्या करके लिस्ट करके स्टोर इंचार्ज को दे दिया कि इसको डिपार्टमेंट का यूज के लिए ये गुड्स को आप इश्यू कीजिए। सपोज स्टोर इंचार्ज फुल इंडेंट को इश्यू नहीं कर पाया, सपोज इंडेंट में 20 गुड्स है, स्टोर इंचार्ज ने 15 गुड्स को इश्यू किया, क्योंकि 5 गुड्स उसके पास नहीं है, तो वो एक्चुअली वो इंडेंट में मेंशन करेगा। तो वही व्हाट शुड दे डू, 4 ऑप्शन, सप्लाई अवेलेबल क्वांटिटी एंड नोट इट इन द इंडेंटर्स कॉपी, कैंसिल द इंडेंट इंटायरली, वेट अंटिल फुल स्टॉक इज अवेलेबल, रिप्लेस विथ एनी मटेरियल विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन ए है, जो इंडेंट मिला स्टोर इंचार्ज को, सपोज वो टोटल सप्लाई नहीं कर पाया, ओके, द स्टोर इंचार्ज कैन नॉट सप्लाई द फुल इंडेंट, जो इंडेंट में जो गुड्स है उसको फुल सप्लाई नहीं कर पाया, तो स्टोर इंचार्ज क्या करेगा, तो वो मेंशन करेगा, जो इंडेंटर्स कॉपी है उसमें क्लियरली मेंशन करेगा कि इतना क्वांटिटी सप्लाई हुआ, ओके, वो उसको इंडेंटर्स कॉपी में मेंशन करके एक रीजन देगा कि इसी के वजह से, एक्चुअली इसी रीजन के वजह से जो टोटल इंडेंट है उसको सप्लाई नहीं कर पाया वो, ठीक है। तो जो इंडेंटर्स कॉपी है उसमें वो क्लियरली मेंशन करेगा,
कि ड्यू टू दिस रीजन एक्चुअली आई एम अनेबल टू इशू फुल सप्लाई, व्हाट एक्चुअली मेंशन्ड इन द इंडेंट। ओके, और कितना क्वांटिटी वो अवेलेबल है उसको मेंशन करेगा कि इतना क्वांटिटी अवेलेबल है उसको मैं इशू किया। ओके, पूरा फुल क्वांटिटी में इशू नहीं कर पाया क्योंकि फुल क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, वो इंडेंटर्स कॉपी में मेंशन करेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी रूल 209 को चलेंगे, जीएफआर रूल 209, रिसिप्ट और इश्यू ऑफ गुड्स एंड रिसिप्ट और इश्यू ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम इंटरनल डिविजन्स। सपोज डिपार्टमेंट का जो इंटरनल डिवीजन से जब गुड्स को रिसीव किया जाता है, इशू किया जाता है, उसी रिलेटेड में जो रूल पोजीशन को याद करना है रूल 209 को। इट इज रिलेटेड टू द रिसिप्ट और इशू ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम इंटरनल डिविजन्स। अच्छा, व्हेन रिसीविंग फ्रॉम इंटरनल डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट, खुद का डिपार्टमेंट का जो इंटरनल डिवीजन है उससे सपोज गुड्स एंड मटेरियल्स एक्चुअली रिसीव हो रहा है, तो प्रोसीजर क्या है? द ऑफिसर हु नीड्स द गुड्स, जो इंडेंटिंग ऑफिसर मेन उसका रोल क्या है? उसको जो जो गुड्स चाहिए वो उसका रिक्वेशन देगा, मस्ट सबमिट एन इंडेंट फॉर्म, वो इंडेंट फॉर्म एक्चुअली सबमिट करेगा कि हमको ये गुड्स चाहिए। ऑन रिसीविंग दे मस्ट चेक क्वांटिटी, क्वालिटी एंड कंडीशन। जब गुड्स रिसीव होगा, इंडेंट ऑफिसर का काम है इंडेंट दे दिया कि ये गुड्स हमको चाहिए, डिपार्टमेंट को चाहिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर ऑफिस के लिए चाहिए। तो ऑन रिसीविंग क्वांटिटी, क्वालिटी और उसका कंडीशन को चेक किया जाएगा। ओके, एंड दे मस्ट, जो सेंडिंग डिवीजन है उसको रिसिप्ट दे देंगे क्योंकि क्वांटिटी रिसीव हो गया, वेरीफाई हो गया। जो इंटरनल डिवीजन, जो सेंडिंग डिवीजन है उसको रिसिप्ट इशू कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हेन इशूइंग फ्रॉम स्टोर स्टॉक, जब स्टोर स्टॉक से इशू होगा तो स्टोर इंचार्ज तो मेन रिस्पॉन्सिबल है, इंडेंट ऑफिसर का काम है वो इंडेंट दे देगा कि ये गुड्स हमको चाहिए, ठीक है। तो जो इंडेंट के हिसाब से गुड्स आ गया उसका क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डेफिशिएंसी, डैमेज, कंडीशन सब चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद इशू कर दिया जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट का डिवीजन एक्चुअली गुड्स एक्चुअली इशू किया है उसको रिसिप्ट दे दिया जाएगा। फिर स्टोर कीपर कैसे इशू करेगा ना, द स्टोर इंचार्ज मस्ट एंश्योर ए प्रॉपर इंडेंट फॉर्म इज सबमिटेड। तो स्टोर इंचार्ज क्या करेगा, जब इशू होगा उसको भी इंडेंट एक्चुअली रिसीव वो करेगा कि इंडेंट में क्लियरली मेंशन होगा कि ये गुड इशू होना चाहिए। तो इंडेंट ऑफिसर से वो एक्चुअली इंडेंट फॉर्म एक्चुअली वो रिसीव करेगा, ठीक है। उसके हिसाब से दे मस्ट ऑब्टेन ए रिटन और ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द इंडेंटिंग ऑफिसर और दे आर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो स्टोर इंचार्ज है वो ऐसे गुड्स को इशू नहीं करेगा, वो एक्चुअली जो इंडेंट ऑफिसर है उससे वो एक रिटन और ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा कि उसका रिप्रेजेंटेटिव, चाहे इंडेंट ऑफिसर का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उससे रिसीव करेगा। तब वो जो इंडेंट फॉर्म में जो है वो एक्चुअली देन स्टोर इंचार्ज इशू करेगा। ओके, व्हेन इशूइंग टू द कॉन्ट्रैक्टर्स, अभी मैं बताया था कॉस्ट रिकवरेबल, ऑल डिटेल्स, रिकवरी रेट्स, टोटल कॉस्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड। कॉन्ट्रैक्टर्स को सपोज डिपार्टमेंट, जो कॉन्ट्रैक्टर, जो एजेंसी काम कर रहा है अभी डिपार्टमेंट में, सपोज डिपार्टमेंट ने खुद कुछ मटेरियल्स दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो कौन सा रेट में दिया और कितना उसका कॉस्ट है वो तो रिकवरी करेगा कॉन्ट्रैक्टर से, वो डिटेल्स रिकॉर्डेड होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर मस्ट साइन एंड डेट द एक्नॉलेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर साइन करेगा तो क्लियरली मेंशन होगा। जैसे मैं अभी बताया था पावर के ऊपर, जैसे डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर को पावर प्रोवाइड किया तो उसमें क्लियरली सपोज डिपार्टमेंट ने बोला यदि डिपार्टमेंट पावर प्रोवाइड कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को तो पर यूनिट ₹10 वो रिकवर करेगा कॉन्ट्रैक्टर से। तो कि जितना यूनिट्स वो यूज करेगा उसके हिसाब से एक्चुअली डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्टर से रिसीव करेगा, टोटल अमाउंट रिकवर करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर उसी तरीका का एक्नॉलेजमेंट को साइन करेगा एंड डेट द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अच्छा, इफ फुल सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, मैं बताया था यदि फुल सप्लाई पॉसिबल नहीं है, सप्लाई वॉट एवर इज अवेलेबल एंड नोट दिस इज इन द इंडेंटर्स कॉपी। यदि फुल सप्लाई अवेलेबल नहीं है, जो इंडेंटर्स कॉपी है उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि जितना क्वांटिटी एक्चुअली इतना क्वांटिटी अवेलेबल है। सपोज इंडेंट फॉर्म में 50 यूनिट्स इशू होना चाहिए मगर इतना यूनिट्स नहीं है, 40 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स नहीं है, तो वहां पर स्टोर इंचार्ज मेंशन करेगा, जो इंडेंटर्स कॉपी है उसमें मेंशन करेगा कि 40 यूनिट्स अवेलेबल है, ओके, 50 यूनिट्स अवेलेबल नहीं है।
तो 40 यूनिट्स ही इशू होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, इफ ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स आर अवेलेबल मेंशन इट इन द डॉक्यूमेंट। यदि कोई ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स अवेलेबल है, उसका सब्स्टिट्यूट मटेरियल्स अवेलेबल है, तभी स्टोर इंचार्ज एक्चुअली इंडेंटर्स कॉपी में मेंशन करेगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए रिक्वायरमेंट अंडर रूल 210? Okay, which of the following is not mentioned as a requirement under rule 210, GFR rule 210? Maintaining proper temperature, keeping dust free conditions, providing secure storage accommodation, regularly changing suppliers। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी है, ये मेंशन नहीं है। जब गुड्स को स्टोर किया जाता है, प्रॉपर टेम्परेचर, कुछ गुड्स है उसको प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर किया जाएगा, यदि प्रॉपर टेम्परेचर नहीं होगा वो खराब हो जाएगा। डस्ट फ्री कंडीशन, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम से डस्ट फ्री कंडीशन होना चाहिए, ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है। और अकोमोडेशन, सिक्योर स्टोरेज अकोमोडेशन, सिक्योर होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, मगर रेगुलरली चेंजिंग सप्लायर्स ये नहीं है, ठीक है। जो रूल 10 एक्चुअली कुछ गुड्स है उसको अच्छा टेम्परेचर चाहिए, उतना टेम्परेचर में गुड्स को प्रिजर्व किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स के लिए डस्ट फ्री कंडीशन चाहिए और सिक्योर स्टोरेज अकोमोडेशन चाहिए, ओके। तो यहां पर ऑप्शन डी इज नॉट मेंशन्ड एज रिक्वायरमेंट अंडर रूल 10। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 8. According to rule 210, special care must be taken particularly for goods that are, किस तरीके का गुड्स को स्पेशल केयर लिया जाएगा? रूल 210 एक्चुअली उसको डिफाइन किया है, चीप एंड नॉन एसेंशियल, वैल्यूएबल एंड और कंब्यूसेबल, पेरिसेबल, इंपोर्टेड। ऑप्शन बी, जो वैल्यूएबल गुड्स है उसका स्पेशल केयर लिया जाएगा, और जो कंब्यूसेबल है, जो इजीली कैच फायर, इजीली जो इनफ्लामेबल गुड्स है उसको थोड़ा हम प्रॉपर केयर लेंगे। तो स्पेशल केयर मस्ट बी गिवन टू द वैल्यूएबल गुड्स और कंब्यूसेबल गुड्स। तो रूल 200, जैसे केमिकल गुड्स है तो इजीली कैच फायर, तो उसको माने कैसे उसको प्रॉपर केयर करके हम उसको प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। और जो वैल्यूएबल गुड्स है उसको कैसे प्रॉपरली प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच फॉर्म इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स? किस तरीके का जीएफआर का किस तरीके का फॉर्म चाहिए जो फिक्स्ड एसेट्स है, जिसको बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स और फिक्स्ड एसेट्स, दोज एसेट्स कैन बी यूज्ड रिपीटेडली, दोज टाइप ऑफ एसेट्स यूज्ड अगेन एंड अगेन। नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, उसको जीएफआर का कौन सा फॉर्म चाहिए जिसमें उसको रिकॉर्डेड किया जाएगा? जीएफआर 18, जीएफआर 23, जीएफआर 22, जीएफआर 24। आप याद रखिए, जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स है जीएफआर 22, कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए जीएफआर 23, लाइब्रेरी गुड्स के लिए जीएफआर 18, और जो आर्चिव्स है, जो हिस्टोरिकल गुड्स है, जीएफआर 24, ठीक है। मगर यहां पर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर पूछा है, तो उसके लिए इसको जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो जीएफआर 22 फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर आ गया कंज्यूमेबल्स। जो गुड्स कंज्यूमेबल्स है उसके लिमिटेड लाइफ स्पैन है, उसका लाइफ स्पैन लिमिटेड है। कंज्यूमेबल गुड्स है लाइक स्टेशनरी, कोई स्टेशनरी गुड्स है एंड स्पेयर पार्ट्स, ओके। जो कंज्यूमेबल गुड्स है तो उसको कौन सा फॉर्म चाहिए? जीएफआर का कौन सा फॉर्म? जीएफआर 23, याद रखिए। नॉन कंज्यूमेबल व फिक्स्ड एसेट्स जीएफआर 22, बट कंज्यूमेबल्स जीएफआर 23। जो स्टेशनरी आइटम्स है, कोई स्पेयर पार्ट्स है, वो सब कंज्यूमेबल्स है, ठीक है। तो उसको जीएफआर फॉर्म जीएफआर 23 में रिकॉर्डेड किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, लाइब्रेरी बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी बुक्स आर रिकॉर्डेड इन, लाइब्रेरी बुक्स जो रिकॉर्ड होगा जीएफआर 18, जीएफआर 22, जीएफआर 23, जीएफआर 24। लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स जो होगा, लाइब्रेरी बुक्स रिकॉर्ड होगा जीएफआर 18, ओके। लाइब्रेरी बुक्स जीएफआर 18, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, assets of historical और artistic value are recorded in। जो historical assets है कि artistic value है, उसको कौन सा जीएफआर फॉर्म में रिकॉर्डेड किया जाएगा? वो जीएफआर 24। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर देखिए, ऑप्शन ए जो है लाइब्रेरी गुड्स, इसी में लाइब्रेरी गुड्स को रिकॉर्डेड किया जाएगा, ठीक है। लाइब्रेरी बुक्स को रिकॉर्डेड किया जाएगा। और नेक्स्ट जो जीएफआर 22 है, फिक्स्ड एसेट्स, जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हम बोलते हैं, ठीक है। और जीएफआर 23 कंज्यूमेबल आइटम्स, जैसे स्टेशनरीज, कंज्यूमेबल आइटम्स। और ये हिस्टोरिकल, जीएफआर 24 हिस्टोरिकल गुड्स,
जो आर्टिस्टिक गुड्स, इसको ठीक है रिकॉर्डेड किया जाएगा, इसको याद रखिए। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्मेट ऑफ स्टॉक अकाउंट्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेस्ड ऑन। जो स्टॉक अकाउंट्स का जो फॉर्मेट है उसको कैसे, उसका बेस क्या है, किस तरीके से उसको डिटरमाइन किया जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा है। द फॉर्मेट ऑफ स्टॉक अकाउंट्स शुड बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन बजट अवेलेबिलिटी ओनली, नेचर ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, नंबर ऑफ स्टोर स्टाफ, टाइप ऑफ सप्लायर्स यूज्ड। जो स्टॉक अकाउंट से उसका जो फॉर्मेट डिटरमाइन होगा वो ऑप्शन बी कि नेचर ऑफ गुड्स को देखेंगे, उसको देख के हम स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट है, नेचर ऑफ गुड्स के कंज्यूमेबल है कि नॉन कंज्यूमेबल है कि हिस्टोरिकल गुड्स है, ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी क्या वो डेली डेली ट्रांजैक्शन होता है, डेली इशू होता है ना, वीकली ना फॉर्टनाइट 15 दिन में कि मंथली, इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे। और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, ओके, जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है उसको भी हम देखेंगे। तो यहां पर जो फॉर्मेट है स्टॉक अकाउंट्स का तो इसी तरीके से डिटरमाइन होता है, नेचर ऑफ गुड्स, ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंसी एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आइटम वाइज लिस्ट एंड अकाउंट्स ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंट में जो आइटम वाइज लिस्ट बनाएगा और अकाउंट्स ऑफ गुड्स को एंड मटेरियल्स को मेंटेन करेगा, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आइटम वाइज लिस्ट को मेंटेन करेगा और उसका गुड्स का जो अकाउंट्स है उसको मेंटेन करेगा, तो हु इज रेस्पॉन्सिबल। इंडेंटिंग ऑफिसर, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टोर्स, टेक्निकल इंस्पेक्टर, अकाउंट्स ऑफिसर। एक्चुअली ये है ऑप्शन बी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्टोर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखेंगे ये सब है रूल 211 में है। रूल पोजीशन याद रखिए, रूल 211 जो है लिस्ट एंड अकाउंट्स के ऊपर है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट का जो लिस्ट अकाउंट्स रिलेटेड है रूल 211। तो यहां पर दे दिया, देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर इंचार्ज। जो स्टोर इंचार्ज है, जो स्टोर का इंचार्ज है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आइटम वाइज लिस्ट मेंटेन करेगा, रजिस्टर में आइटम वाइज लिस्ट मेंटेन करेगा। और अकाउंट्स, वो गुड्स को जो परचेज किया गया था उसका प्राइस क्या था और कौन सा सप्लायर से परचेज किया गया था, कौन सा डेट में, और वाउचर नंबर क्या है, ये सब डिटेल्स वो मेंटेन करेगा। स्टोर इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल। और प्रिपेयर एक्यूरेट रिटर्न सो दैट एट एनी टाइम द फिजिकल स्टॉक कैन बी चेक्ड अगेंस्ट द रिकॉर्डेड स्टॉक। तो फिजिकल स्टॉक क्योंकि इश्यू होता है, इश्यू होने के बाद एवरी ईयर वो क्या है स्टॉक को चेक किया जाएगा। तो जितना इश्यू फिजिकल स्टॉक इश्यू हुआ उसके बाद जो बैलेंस उसको चेक किया जाएगा, बैलेंस प्लस जो इश्यू हुआ है क्या वो रिकॉर्डेड के साथ समान हो रहा है कि नहीं। सपोज जैसे एक आइटम 15 यूनिट्स है, ठीक है, 5 यूनिट्स एक्चुअली इश्यू हुआ है, 5 यूनिट्स इश्यू हुआ है और 10 बैलेंस में है, तो बैलेंस प्लस इश्यू को हम चेक करेंगे वो इसके साथ समान हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये ऑफिसर इंचार्ज का काम है। नेक्स्ट वन, फॉर्म ऑफ स्टॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्म ऑफ स्टॉक अकाउंट्स, फॉर्म ऑफ स्टॉक अकाउंट्स एक्चुअली जो मैं अभी बताया था, जैसे जीएफआर 22 फॉर्म है, जैसे फॉर्म 22 है, जीएफआर फॉर्म 22 है, ये फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरीज, मशीन टूल्स, इक्विपमेंट्स की। 23 फॉर्म 23 कंज्यूमेबल स्टेशनरी आइटम्स, 24 हिस्टोरिकल आइटम्स की। फॉर्म 18 लाइब्रेरी गुड्स, लाइब्रेरी बुक्स। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन आता है, जो फॉर्म ऑफ स्टॉक अकाउंट्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गुड्स और मटेरियल। कि नेचर ऑफ गुड्स मींस हम मशीनरी, स्टेशनरी, देखिए मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये फिक्स्ड एसेट्स मींस कौन सा फॉर्म के हिसाब से रिकॉर्डेड होगा, फॉर्म 22। स्टेशनरी है, कंज्यूमेबल है, मशीनरी नॉन कंज्यूमेबल है, तो ये फॉर्म 23। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस देखेंगे, क्या डेली की मंथली ओकेजनल, इसका देखेंगे। और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को, तो उसके हिसाब से एक्चुअली स्टॉक अकाउंट्स का फॉर्म एक्चुअली डिपेंड करता है। ओके, दीज थिंग्स, नेचर ऑफ गुड्स की, सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, सो ये 3 इसको याद रखिए। ओके, सो फॉर्म ऑफ स्टॉक अकाउंट्स डिपेंड्स ऑन दीज 3 थिंग्स, नेचर ऑफ गुड्स और मटेरियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन दिया है सेपरेट अकाउंट्स टू बी मेंटेन फॉर फिक्स्ड एसेट्स। देखिए ये है नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स, फॉर्म जीएफआर 22, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स,
those type of goods used again and again, those type of goods repeatedly used, वो फिक्स्ड एसेट्स फॉर्म GFR 22। और कंज्यूमेबल्स आ जाएगा ऑफिस स्टेशनरी, केमिकल्स, मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स, ओके, जिसको कंज्यूम कर दिया जाएगा तो फॉर्म GFR 23। लाइब्रेरी बुक्स फॉर्म GFR 18। और कोई हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक वैल्यू गुड्स है हेल्ड बाय म्यूजियम्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो हिस्टोरिकल गुड्स है उसको म्यूजियम में प्रिजर्व किया जाएगा तो वो फॉर्म रिकॉर्डेड होगा फॉर्म GFR 24। ठीक है, तो 211 अकाउंट्स एंड लिस्ट के ऊपर एक्चुअली डिफाइन किया है रिलेटेड टू द इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो आज इतना ही था। तो मैं आज डिस्कस किया एक्चुअली रूल 200 GFR ओके 207 to 211, इट इज रिलेटेड टू द इन्वेंटरी मैनेजमेंट। 14 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, किस तरह के माने व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन, और थोड़ा रूल्स को भी क्लैरिफाई किया। ईच एंड एवरी रूल को मैं क्या किया 207 to 211 ब्रीफली क्लैरिफाई किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel, like my channel, so that you can get quality videos, okay, and quality questions for your preparation in the subsequent time. Thank you and namaskar to all of you.